Hello, sixth class. This is your math subject. Children, today we are going to continue our chapter 7, exercise 7.E. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Equation. So, what is equation? An equation is a mathematical statement contains a sign of equality on other side. An equation may or may not contain variables. Equations without variables are generally known as numerical equations. So, see the example 13 minus 2 equal to 11. So, in this equation, no variables. So, it means this is numerical equation, and equation with variable are known as algebraic equations. So see 5x equal to 15. So this is algebraic equations because यहाँ पर हमारे variable use हो रहा है. Now comes next solution of equation. So the value of variable which are suitable in the equation satisfied the equation left hand side equal to right hand side is the solution of the equation. So इसके लिए हम two methods use करेंगे बेटा. Next page you see solve an equation by trial and error methods. First हम use करेंगे trial and error method. So इसके लिए हम steps follow करेंगे. First is make a guess of the solution of the given equation. Now second step, suitable this value for the variable and find the value of left hand side equal to right hand side. So यहाँ पर आप देखेंगे example. So this is our equation x plus 9 equal to 13. So left hand side is x plus 9 and right hand side equal to 13. Okay. सो फर्स्टली हमने गैस किया x को x इक्वल टू 1. सो यहाँ पर x प्लस 9 है. सो x के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे. सो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10. सो लेफ्ट हैंड साइड इज 10 एंड राइट हैंड साइड इज 13. सो दीज आर नॉट इक्वल. ओके. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होंगी देन द सुटेबल वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अदरवाइज हम क्या करेंगे? रिपीट द सेम स्टेप with other likely value of the variable till the correct value of the variable is found left hand side equal to right hand side. जब तक हमारे इक्वल नहीं होंगे तब तक हम इनको लैड करते चले जाएंगे, गैस करेंगे अपने नंबर्स को. नाउ सी सेकेंड हमने 2 नंबर गैस किया है x इक्वल टू 2. सो 2 प्लस 9 इक्वल टू 11. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल. नाउ कम्स 3. सो 3 प्लस 9 इक्वल टू 12. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल. नाउ कम्स 4. 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 एंड राइट हैंड साइड हमारी 13 है. सो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. So hence x equal to 4 is the solution of the given equation. Now comes next solving the an equation by systematic method. So इसके लिए हम follow करेंगे rules. So first is the same number can be added to both side of the equation. So यहाँ पर example देखेंगे if a minus 9 equal to 11. So both side means left hand side and right hand side में हम plus 9 कर देंगे. So यहाँ solution करेंगे equation का. Then सेकेंड रूल फॉलो करेंगे. यहाँ पर द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. सो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन इज x प्लस 2 इक्वल टू 7. सो यहाँ पर हमने -2 किया है बोथ साइड. नाउ थर्ड रूल इज मल्टीप्लाई करेंगे सेम नॉन जीरो नंबर से. सो यहाँ पर आप देखेंगे y/3 इक्वल टू 6 है. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किया बोथ साइड. नाउ फोर्थ रूल इज डिवाइड करेंगे सेम नॉन जीरो नंबर से. सो 3x इक्वल टू 18. नाउ यहाँ पर डिवाइड किया 3 से. नाउ सोल्व द एग्जाम्पल्स. कैसे हम करेंगे इनको? x प्लस 3 इक्वल टू 7 है हमारी इक्वेशन. सो यहाँ पर हमने बोथ साइड -3 किया है. ओके. सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड. सो x इक्वल टू हमारा 4 आ गया बिकॉज +3 एंड -3 हमारा कट हो गया. सो x इक्वल टू 7 - 3 इज 4. सो दिस इज आवर आंसर. x इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. नाउ कम्स आवर एक्सरसाइज 7.E. A part select the correct answer. First question is 4/2 equal to 2 denote a. So ये किसको डिनोट कर रहा है? ये जो हमारी इक्वेशन है. सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल इक्वेशन बिकॉज इसमें कोई हमारा वेरिएबल नहीं है. सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल इक्वेशन. नाउ कम सेकेंड x -4 इक्वल टू -2 हैज अ सॉल्यूशन. सो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप बोथ साइड +4 करके. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट 2. Now comes third. I think of a number and on adding 13. हमने कोई नंबर थिंक किया एंड उसमें 13 ऐड किया. सो लेट हमारा नंबर होगा x प्लस 13 करेंगे. सो आई गेट 27. सो हमें क्या मिला? 27 मिला. सो x प्लस 13 इक्वल टू 27. सो इसमें से कौन सी इक्वेशन हमारी ओके होगी? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. x प्लस 13 इक्वल टू 27.
Now comes B part, solve the following. First question, state value of the following are equations with a variable. Also identify the variable in the equation. So A part is n minus 4 greater than 100. So यहाँ पर इसका solution आप देखेंगे बेटा. So state which of the following are equations with a variable, also the variable in the equation. So A part is, since it is not a statement of equality, ये equal नहीं है, greater than है, okay, so therefore it is not an equation, ये हमारी equation नहीं है. Now B part आप अपनी book में देखेंगे बेटा, 5 plus 3 equal to 8. So in this equation इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, ये इक्वल तो है विदाउट वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, देयरफॉर इट इज एन न्यूमेरिक इक्वेशन. ओके, नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा, 9x minus 5 equal to 14. So since it is the statement of equality with a variable, therefore it is an equal on. ठीक है, now इसका जो वेरिएबल यूज किया है उसमें वेरिएबल इज x. Now same you have to solve other part of this question and check your answer with this answer key. Now comes question number 2, see in your book. Write the following statement in the form of the equation. So first part आप देखेंगे, 1/3 of a number adding to 5 give 8. तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/3 ऑफ अ नंबर, हमने नंबर लेट किया x का 1/3, उसमें हमने 5 ऐड किया है, सो हमें क्या मिला, 8 मिला. सो दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ बी पार्ट आप देखेंगे बेटा, कोशेंट ऑफ 3 बाय x डिक्रीज बाय 9 इज 4. सो आवर इक्वेशन इज 3 अपॉन x माइनस 9 इक्वल टू -4. नाउ सी पार्ट आप देखेंगे, सी इन योर बुक, thrice the difference of 30 and c gives 27. 30 माइनस c का थ्राइस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा. सो दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ यू हैव टू सॉल्व डी एंड ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3. See in your book, solve the following equation by the trial and error method. So in this question we use trial and error method. So A part आप देखेंगे बेटा, x plus 10 equal to 15. So firstly we put x equal to 2 in the equation, x plus 10 equal to 15. So यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, x plus 10. So x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया, 2 plus 10 equal to 12. बट राइट हैंड साइड हमारी 15 है, सो दीज आर नॉट इक्वल. So this is not the solution of the equation. Now comes put x equal to 4. सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करी है, सो x इज 4 एंड 10, 4 plus 10 इक्वल टू 14. सो राइट हैंड साइड हमारी 15 है, सो दिस इज नॉट इक्वल. सो x इक्वल टू 4 इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, नाउ x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, सो यहाँ पर 5 plus 10 इक्वल टू 15. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 15 आ गई, राइट हैंड साइड भी हमारी 15 है, सो ये हमारे इक्वल हो गए. हैंस x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो जब तक हमारा बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आता, तब तक हम अपना कोई नंबर गैस करते रहेंगे एंड वैल्यू इक्वेशन में अपना वैल्यू पुट करेंगे. नाउ कम सी पार्ट आप देखेंगे बेटा, 2l plus 3 equal to 7. सो यहाँ पर हमने फर्स्टली पुट किया l इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन. So 2 multiply 1 plus 3, so 2 plus 3 equal to 5, but right hand side हमारी 7 है, not equal. So this is not a solution of this equation. Now put l equal to 2 in this equation. So 2 multiply 2 plus 3 equal to 2 multiply 2 is 4 plus 3 करेंगे, so 4 plus 3 equal to 7. So right hand side हमारी 7 आ गई एंड लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 7 आ गई. सो बोथ आर इक्वल. सो हैंस l इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ हेयर f पार्ट, पुट m इक्वल टू 6. हमारी इक्वेशन क्या है, m अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल टू -5 हमारा आना चाहिए. सो यहाँ पर हमने m के प्लेस पर 6 रखा है, 6 अपॉन 3 प्लस 2. नाउ ये कट करेंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, बट राइट हैंड साइड हमारी -5 है, नॉट इक्वल. सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन. नाउ कम्स, यहाँ पर हमने नेक्स्ट m इक्वल टू 9 पुट किया है. सो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर आपने 9 पुट किया, सो 9 अपॉन 3. नाउ यहाँ कट हो गया, 3 प्लस 2, सो दिस इज आवर 5,
बट हमारा -5 आना चाहिए, तो दिस इज नॉट सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पर हमारा देखेंगे, अब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने -21 पुट करी है, सो -21/3 + 2, सो इसको हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7, देन +2 करेंगे, सो -7 + 2 इज -5। सो राइट हैंड साइड भी हमारी -5 है, सो बोथ आर इक्वल, hence m equal to -21 is the solution of the equation. -21 is our answer. Okay, now same you have to solve other part of this question. Now comes question number 4. See in your book, does the following equation satisfy the given solution? So a part आप देखेंगे बेटा, 5 b + 5 = 7, ब्रैकेट में आपको b की वैल्यू 4 दी हुई है। आपको ये पुट करना है बेटा कि इसमें अगर आप b की वैल्यू 4 पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या ये इक्वल होगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे पुट b = 4 इन द गिवन इक्वेशन। सो इक्वेशन हमारी क्या है, b + 5। ओके, सो b के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ हमने हमें दिया हुआ है कि b के प्लेस पर 4 पुट करना है। सो 4 + 5 = 9। सो राइट हैंड साइड हमारी 7 है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, हैंस b = 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ b पार्ट आप देखेंगे बेटा, सी इन योर बुक, 14 + 2y = 20, ये हमारा 20 आना चाहिए। इफ वी पुट वैल्यू ऑफ y = 3, अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करें, सो यहाँ पर आप देखेंगे 14 + 2y में हमने y के प्लेस पर 3 पुट किया, सो 2 × 3 is 6, 14 + 6 = 20। सो राइट हैंड साइड हमारी 20 है, सो बोथ हमारी इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी 20 एंड राइट हैंड साइड भी 20, सो हैंस y = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ सेम सी पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर x = 10 पुट करेंगे, you do it yourself and then check your answer with this answer key. Now comes question number D, E, F part of this question. Firstly you do it yourself and then check your answers. Now comes question number 5, see in your book, find the solution of the following equation. So यहाँ पर A part है बेटा, x - 3 = -4। सो यहाँ पर हमने बोथ साइड बेटा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एडिंग 3 किया है। ओके, सो यहाँ पर हमने 3 ऐड किया, x - 3 + 3, और इधर भी हमने -4 + 3 किया है। सो यहाँ -3 से +3 कट हो जाएगा, x आ जाएगा इक्वल टू -4 + 3 हमारा क्या होता है, माइनस करना होता है, बट साइन हम जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसका लगाएंगे, सो -1 आ जाएगा। सो x = -1 इज आवर आंसर। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा, 3q = 24। सो यहाँ पर हमने बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड 3 किया है। नाउ 3 से 3 कट हो गया, तो q = हमारा क्या आ गया, 3 को 24 से कट करेंगे 8, सो q = 8 इज आवर आंसर। नाउ ई पार्ट आप देखेंगे, x/7 - 2 = 1। सो यहाँ पर हमने +2 किया है बोथ साइड, सो ये हमारा कट हो जाएगा, x/7 = 3 आ गया, 1 + 2 is 3। नाउ अगेन हमने यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है 7 से। ओके, सो यहाँ पर 7 से 7 कट हो गया, यहाँ बेटा बाय मिस्टेक 3 है, आप इसको 7 रीड करेंगे, दिस इज 7। ओके, सो यहाँ 7 से 7 कट हो जाएगा, सो x = 21 हमारा आ गया, 7 3 = 21, सो x = 21 इज आवर आंसर। नाउ एच पार्ट आप देखेंगे, 9 - 2x = -11। सो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड -9 से। ओके, सो +9 एंड -9 कट हो गया, -2x = हमारा 20 हो गया, -11 - 9 क्या होता है, -20। नाउ अगेन हम डिवाइड कर देंगे -2 से, सो -2 से -2 कट हो गया, यहाँ पर हमारा x रह गया। नाउ यहाँ पर हम कट करेंगे, सो 10, x = 10 इज आवर आंसर। नाउ सेम यू हैव टू सोल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सी इन योर बुक, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में वैल्यूज पुट दे रखी है बेटा, इनको आप पुट करके देखेंगे कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन होगा। सो ए पार्ट इज 5 ब्रैकेट x + 2 = 15। सो यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्टली 0 दी है, देन -3, देन 1 एंड 2। सो फर्स्टली हम 1 पुट करेंगे एंड सॉरी 0 पुट करेंगे एंड आप देखेंगे कि ये हमारा इक्वल होगा कि नहीं। ओके, ऐसे ही आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, जोन सा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो वो आप अपना आंसर लिखेंगे।
सो बी पार्ट आप देखेंगे 2b + 5 = 9. सो यहाँ पर b की वैल्यू दी हुई है बेटा 1, 2, -2 एंड 4. सो ये आपको दिखाया हुआ है स्क्रीन पर. फर्स्टली हमने b = 1 रखा है. सो 2b + 5 आवर लेफ्ट हैंड साइड. सो b हमारा 1 है. सो 2 × 1 + 5. सो 2 + 5 = 7. तो राइट हैंड साइड हमारी 9 है. सो ये इक्वल नहीं है. नाउ b = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ कम्स नेक्स्ट b = 2 हम पुट करेंगे. 1 के बाद हमें 2 गिवन है. सो यहाँ पर हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे. 2 × 2 + 5 = 4 + 5. इसको सॉल्व करेंगे. सो 9 आ गया. सो राइट हैंड साइड हमारी 9 है. सो ये हमारा इक्वल आ गया. सो हैंस b = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, नाउ कम सी पार्ट. यहाँ पर बेटा हमें Q/2 + 5 = 11 गिवन है एंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू दे रखी है Q की 10, 11, 12 एंड -11. सो फर्स्टली हम 10 पुट करेंगे. सो यहाँ पर हमने 10/2 किया, देन +5, ये कट करके 5 + 5 = 10. बट हमारा राइट हैंड साइड क्या है 11 है. सो ये हमारा इक्वल नहीं है. इट मीन्स Q = 10 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ कम्स Q = 11 पुट करेंगे. 11/2 + 5. सो 11/2 इज 5.5. देन +5 करेंगे 10.5 आ जाएगा. सो दिस इज नॉट इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो 11 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ कम्स Q हम 12 पुट करेंगे. सो 12/2 + 5, ये कट होके 6 + 5 आ गया. सो 6 + 5 इज 11. सो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज solution of the equation, means Q = 12 is our answer. Now comes question number 7. See in your book. Complete the following table and find the solution of the equation 2m - 5 = -1. So यहाँ पर बेटा आपको टेबल गिवन है, आप अपनी बुक में देखेंगे m and 2m - 5. सो यहाँ पर आपको वैल्यूज दी रखी है 0, 1, 2, 3 is to 6. ओके, सो फर्स्टली आप 0 पुट करेंगे. 2 m के प्लेस पर हमें 0 रखना है. सो 2 × 0 -5. सो 2 × 0 इज 0. देन -5 करेंगे. सो -5 हमारा आ जाएगा. नाउ सेम 1 पुट करेंगे. 2 × 1 इज 2. देन -5 करेंगे, -3 आ जाएगा. नाउ सेम हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, अपना आंसर फाइंड करेंगे. बट यहाँ पर हमारा जो राइट हैंड साइड, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है -1 है. ओके, सो हमारा -1 कौन सा आया है 2 पुट करने से. सो 2 इज आवर आंसर. ओके, सो m = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह पुट करनी है वैल्यूज जो आपको गिवन है 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो फर्स्टली वैल्यू पुट करेंगे एंड जिसका आंसर इक्वल 7 आएगा सो वो हमारा सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का. सो यहाँ पर 7 हमारा यहाँ पर है. सो x = हमने 10 पुट किया है. So x = 10 in the solution of the equation. Okay, now children, your exercise and chapter is also over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.